Hello, good morning, students. As you know very well that I have already explained Act number 5 some portion to you. Today once again I am going to explain Act number 5 from beginning for your better understanding. So please open your books and try to understand the lines which I am explaining. In the beginning of the scene, Lorenzo and Jessica, both of them are standing in the avenue of Portia's house and they are discussing the different lovers and their love stories. Those who were unsuccessful in their field of love. And the witness of their flop love story was Moon. Today also there is moonlight scattered everywhere. Lorenzo indicates Jessica and he says that moon is shining very bright today. And ऐसी ही रात जैसी कि आज है पहले भी हुआ करती थी जब सॉफ्ट विंड का सॉफ्ट टच पेड़ जो थे वो रिसीव किया करते थे और साथ में इतना जेंटल टच होता था वो इट वॉज सच अ जेंटल टच दैट ट्रीज मेड नो नॉइज एट ऑल. वैसी ही चांदनी रात आज भी है, वैसी ही हवा आज भी चल रही है, वैसा ही सॉफ्ट टच हवा का पेड़ आज भी रिसीव कर रहे हैं. लोरेंजो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ट्रोलियस एंड हिज लव स्टोरी with Cressida. Both of them loved each other a lot and they took the oath to live together. But during the siege of Troy by Greek army, some prisoners were exchanged. So Greek lady Cressida was also exchanged and she went to Greek side. Till then Troilus started missing her a lot. He used to climb over the walls of his palace only to have a sight of Cressida. Anyhow, he wanted to see her face, see her beauty only one time. After all, he was madly in love with her. But unfortunately, Cressida never came out of the tent, of the Greek tents, because she was quite settled there with another Greek person. That is name is Diomed. Diomed was a person with whom Cressida fell in love. So she never came out of the tent. Lorenzo was very dejected and the love story was ended. Now Jessica gives the example and she says that in such a night another love story was also flopped and that was of Thisbe and Pyramus. Both of them loved each other. Thisbe was a maiden who belonged to Babylon and both of them decided to meet at a certain place near the tomb of Ninus when their parents forbade them to meet each other. थिस्बे अपने डिसाइडेड टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ समय से पहुँची. पिरेमस थोड़ा लेट था लेकिन जब थिस्बे वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि एक लायन उसके सामने मौजूद है. उसके मुंह पे खून लगा हुआ था, लायन के मुंह पे कहीं से शिकार करके आया था. थिस्बे ran in fear. Lion also chased her but fell down over the cloak which Thisbe put off while running because she was facing difficulty in running with that very cloak. अब लायन का जो खून से सना हुआ मुंह था वो थिस्बे के गिरे हुए क्लोक पे पड़ा जिससे कि क्लोक पे भी ब्लड आ गया.
और थिस्बे तब तक वहाँ से भाग गई जब तक लायन खड़ा हुआ. नाउ पिरेमस केम टू दैट वेरी स्पॉट when he saw Thisbe dead there only because of the cloak which was blood stained. Physically he had not seen her body, but he considered that Thisbe was dead. So that's why he committed suicide at the same spot. Now Thisbe came back, and she, when found Pyramus dead, she also committed suicide. Now Lorenzo gives the example, and he says that in such a night, another love story was also flopped, that was of Dido and Aeneas. Aeneas is considered to be the father of Roman civilization because he was a refugee. He used to take shelter under the command of god Jupiter, and sometime in some other country and sometime in some other country he started taking the refuge only because of being terrified by Greek army, though he himself was very brave. But when he found the siege of Greek people very strong, then with some of these friends of his kingdom, means Troy, he fled from that very place. Finally he came to Carthage, और वहाँ की रानी थी Dido. He took shelter there with her permission. Now when he started living there, Dido fell in love with Aeneas. But god Jupiter commanded Aeneas to leave that very place and move to Italy. Aeneas did the same. And when he was going, Dido was very upset. उसका हार्ट बहुत सैड था, बहुत दुखी होकर के वो अपने हैंड्स को वेव कर रही थी, शायद उससे इस बात की अपील कर रही थी कि वो कारथेज लौट के ज़रूर आए. लेकिन एनियास कारथेज लौट के नहीं आया और वो वहीं सेटल हो गया, जिससे कि डिडो ने सुसाइड कर ली. Jessica gives the example now, and she says that in such a night, Jason also deceived his lover Medea. She was his wife too. Jason actually fell in love with a princess, because of which he fled away. मीडिया अब अकेली रह गई उसके जाने के बाद. शेक्सपियरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को मूनलाइट में रख दें, स्पेसिफिक स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स को, तो उसके अंदर मैजिकल क्वालिटीज़ आ जाती हैं. तो फिर मीडिया ने भी ऐसे ही किया और उसने अपनी बाकी की एज को स्पेंड करने के लिए अपने ओल्ड फादर इन लॉ एसन के यूथ को रेस्टोर किया उन हर्ब्स की हेल्प से, जिन हर्ब्स को उसने मूनलाइट में रख दिया था पूरी रात, जिससे कि उनके अंदर आई मैजिकल क्वालिटीज़. Lorenzo gives the example now. In such a night, Jessica also ran away from her wealthy Jewish father, Shiloh, and with that very lover who did not have even money to spend the life, and she ran away from Venice to Belmont with him. And the witness is again the moonlight. Jessica says, in such a night, young Lorenzo swore he loved her well. Moonlight is the witness again. ऐसी ही चांदनी रात में जैसे कि आज है, लोरेंजो ने भी ये कसम खाई थी खड़े होकर कि ऐसी ही चांदनी रात में
कि वो उसके प्रति वफादार रहेगा, उसको हमेशा प्यार करेगा। उसने उसके दिल में एक सोफिस्टिकेटेड कॉर्नर बना लिया था वफादार रहने की कसमों को खाकर, और उसने एक भी कसम नहीं निभाई, और उसका गवाह है ये चंद्रमा लोरेंजो। तो फिर ऐसी ही चांदनी रात में बताओ, जेसिका जो कि एक सुंदर लेडी है, एक बैड टेम्परामेंटल लेडी की तरह, श्रीव मीन्स बैड टेम्परामेंटल, स्लेंडर मीन्स डिफेम, और वो अपने लव को ही डिफेम कर रही है, बताओ। लेकिन लोरेंजो कितना महान है कि वो उसके बावजूद भी इसी चांदनी रात में खड़े होकर के लोरेंजो उसने उसको माफ़ कर दिया, उस ब्लेमिंग के लिए भी माफ़ कर दिया जेसिका। भाई आई वुड आउट नाइट यू मीन्स बीट यू इन द गेम ऑफ इन सच अ नाइट। मैं आपको इन सच अ नाइट के इस गेम में बीट कर देती अगर कोई नहीं आ रहा होता, बट समबडी इज़ कमिंग ओवर हेयर, लिसन। मुझे किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है जो इधर ही आ रहा है। तभी वहाँ पोर्शिया का सर्वेंट स्टीफेनो आ जाता है स्टेज पे। लोरेंजो हु कम सो फास्ट इन द साइलेंस ऑफ नाइट। रात के साइलेंस में इतनी जल्दी जल्दी कौन आ रहा है भाई? स्टीफेनो, अ फ्रेंड। अरे फ्रेंड हूँ भाई, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लोरेंजो फ्रेंड चौंक कर कहता है, भाई फ्रेंड हो तो नाम भी होगा तुम्हारा, कुछ नाम बताओ। स्टीफेनो कहता है, भाई मेरा नाम स्टीफेनो है और मैं अपनी मिस्ट्रेस पोर्शिया की तरफ से ये मैसेज लाया हूँ कि अगले डे के राइज़ होने से पहले पोर्शिया जो है बेलमंट पहुँचने वाली है, बेलमंट आ जाएगी। रास्ते में होली क्रॉसेस, जब वो आ रही है तो होली क्रॉसेस जो है सेटअप हैं, और होली क्रॉसेस को क्रिश्चियंस सेटअप करते हैं रास्ते में ताकि उनको गॉड का नाम रिमाइंड रहे। सो दैट्स वाई पोर्शिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम एंड शी इज़ बोइंग डाउन हर बॉडी, kneeling down herself before God, taking the round of those very holy crosses and praying for her upcoming married life. She wishes that her upcoming married life must be full of happiness. Lorenzo, who comes with her? भाई उसके साथ कौन आ रहा है? स्टीफेनो। अरे उसके साथ एक होली हर्मिट और उसकी जो मेड है नेरिसा, वो आ रही है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि क्या मेरा जो मालिक है बेसेनियो, वो अभी तक लौट के आ गया है या नहीं? लोरेंजो, भाई अभी तक तो नहीं आया है और ना ही हमने उसके बारे में सुना है कोई मैसेज। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम हिम। एंड ही कट्स ऑफ हिज स्टेटमेंट एंड अगेन फोकसेस ऑन जेसिका एंड सेज टू हर, भाई जेसिका एक काम करते हैं, चलो अंदर चलते हैं। अब हमें पोर्शिया के आने की खबर तो मिल ही गई है, तो फिर हम सेरेमोनियसली फॉर्मल तरीके का वेलकम पोर्शिया को देंगे और उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए घर के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हम उनको सेरेमोनियस तरीके से वेलकम कर पाएंगे, फॉर्मल तरीके से वेलकम कर पाएंगे। एंटर लॉन्सलॉट शोर मचाता हुआ आ रहा है, नाराज़ है लोरेंजो से। लोरेंजो ने उसको पिछले सीन में, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, उसको किचन में भेज दिया था दूसरे सर्वेंट्स के पास काम करने के लिए, तो वो शाउटिंग करते हुए आ रहा है। लोरेंजो, भाई हु इज़ शाउटिंग? लॉन्सलॉट, हेलो। भाई क्या आपने मास्टर लोरेंजो को देखा है? और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, मास्टर लोरेंजो, हेलो हेलो। लोरेंजो, भाई लीव हेलोइंग, स्टॉप शाउटिंग मैन, आई एम प्रेजेंट हियर। लोरेंजो, बोला हेलो कहाँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। लोरेंजो, अबे मैं तेरी आंखों के सामने ही तो खड़ा हूँ भाई। लॉन्सलॉट, टेल हिम देयर इज अ पोस्ट कम फ्रॉम माय मास्टर फुल ऑफ गुड न्यूज़, माय मास्टर विल बी हियर एर मॉर्निंग। भाई ऐसा है, मेरा मालिक यहाँ सुबह से पहले पहुँच जाएगा, वैसे नहीं हो, क्योंकि उसका एक मैसेंजर मुझे मिला। पोस्ट मतलब मैसेंजर, और वो आया था और उसने ट्रम्पेट की आवाज़ के साथ इस बात को डिक्लेयर किया कि वो सुबह होने से पहले उसका मालिक
यहाँ तक आ जाएगा और वो ये न्यूज़ दे करके बेसेनियो के मैसेंजर की न्यूज़ दे करके बेसेनियो के अराइवल के बारे में जो न्यूज़ थी ये न्यूज़ दे करके वो चला जाता है। लोरेंजो माय स्वीट हार्ट जेसिका अंदर चलते हैं और जाकर के एक्सपेक्ट मतलब वेट, उनके आने का वेट करते हैं। पोर्शिया और बेसेनियो के आने का वेट करते हैं। एंड येट नो मैटर, और वो कहता है कि खैर हम अंदर ही क्यों जाएं, नॉट एट ऑल, अगर बाई चांस हम यहीं बाहर रहकर ही वेट करें तो भी मेरे पास एक अच्छा तरीका है उनका फॉर्मल तरीके का वेलकम करने का। माय फ्रेंड स्टीफेनो, और वो अपने जो स्टीफेनो सर्वेंट आया था उससे कहता है कि भाई ऐसा है, हमारे लिए आप एक काम कर दें, अनाउंसमेंट करने का काम कर दें कि पोर्शिया जो है हमारी जो मिस्ट्रेस है वो एट हैंड है। एट हैंड का मतलब एट सम डिस्टेंस, वेरी नियर, और हमें कुछ म्यूजिशियंस चाहिए ताकि वो अपने म्यूज़िकल जो नोट्स हैं, सॉन्ग्स हैं, उनकी जो म्यूज़िकल आवाज़ है उसको बजाएं ताकि वो म्यूज़िक और म्यूज़िकल नोट्स हवा के थ्रू पोर्शिया तक पहुँचें और उसको वेलकम करते हुए यहाँ तक लेके आएँ। स्टीफेनो चला जाता है तुरंत म्यूजिशियंस को लाने के लिए। लोरेंजो जेसिका से कहता है, देखो जेसिका, सरप्राइजिंगली कहता है, स्कैटर्ड मूनलाइट को देख के कहता है कि देखो कितनी सुंदर लग रही है ये मूनलाइट जो बिखरी हुई है माउंट्स के ऊपर। ये जो उठी हुई जगह हैं, एलिवेटेड सरफेस हैं, इनके ऊपर ये जो मौजूद मूनलाइट है ये शानदार लग रही है। चलो एक माउंट पे हम बैठते हैं, इशारा करते हुए कहता है, एंड लेट द साउंड ऑफ म्यूज़िक क्रीप इन आवर ईयर्स, और साथ में जो म्यूज़िक की आवाज़ है जो हवा के थ्रू ट्रैवल करते हुए हमारे कानों तक आएगी, हम उसको आने देते हैं। क्योंकि तुम जानती हो रात का जो स्टिलनेस है, रात की जो कामनेस है, रात का जो शांत माहौल है, वो इस तरह के जो स्वीट म्यूज़िक है, म्यूज़िकल नोट्स हैं, उनको सुनने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता है उस टाइम पर। जेसिका से कहता है, जेसिका यहाँ बैठ जाओ और लो हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिकली इनलेड ऑफ ब्राइट गोल्ड। वो देखो आसमान के सरफेस को, और आसमान का सरफेस कितना ज़्यादा डेकोरेटेड है, कितना पास पास मौजूद स्टार्स हैं, और जो पास पास मौजूद स्टार्स हैं वो बिल्कुल शाइनी मेटल्स के जैसे नज़र आ रहे हैं, चमकदार मेटल्स के जैसे नज़र आ रहे हैं। वो देखो जो छोटे से छोटा जो ऑर्ब है, छोटे से छोटा जो प्लेनेट है, हर प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ मूव करते हुए एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सभी प्लैनेट्स म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो सभी प्लैनेट्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो मोशन के वक्त म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्टिल क्वेरिंग टू बी यंग आइड शेरविंड्स, एंजल की तरह तो गीत गाते ही हैं, और इसके अलावा वो कॉयर की फॉर्म में गीत गाते हैं, साथ मिलकर के गीत गाते हैं उन एंजल्स के साथ जो ब्राइट आइज़ वाले एंजल्स हैं, गॉड के काफ़ी क्लोज रहते हैं, गॉड की सेवा में रहते हैं, सर्विसेज में रहते हैं, उनके साथ मिलके गीत गाते हैं वो सभी प्लैनेट्स। और जो टोटल ओवरऑल प्लैनेट्स का जो म्यूज़िक है, जो कि अर्थ की हार्मनी को सेटअप करता है, धरती की पीस को सेटअप करता है, टोटल ओवरऑल म्यूज़िक, उस म्यूज़िक को बस खाली हमारी सोल्स ही सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते, क्योंकि जब तक वो जो सोल है वो बॉडी के अंदर है, वो भी मडी मीन्स ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई बॉडी, वेस्टर मीन्स हाउस, डिके मीन्स पेरिशेबल, जो नष्ट हो जाता है। जब तक वो सोल बॉडी के अंदर है, मिट्टी की बनी हुई बॉडी के अंदर, जो कि
पेरिशेबल है और वो बॉडी सोल को टेम्परेरी तौर पर, ग्रॉसली तौर पर, रफली तौर पर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने अंदर जब तक बंद करके रखती है सोल को बॉडी, तब तक वो उस म्यूज़िक को नहीं सुन सकती सोल, हम नहीं सुन सकते उस म्यूज़िक को। लेकिन बॉडी से जब वो बाहर आ जाती है तो हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं। म्यूजिशियंस आ जाते हैं, कम हो एंड वेक डायना विद अ हिम। और लोरेंजो म्यूजिशियन से कहता है कि भाई इतना शानदार म्यूज़िक होना चाहिए कि जो मून गॉडेस यानी चंद्रमा की रोशनी की फॉर्म में ये चांदनी बिखरी हुई है, वो तब जो है इन शानदार हिम्स को सुन के, गीतों को सुन के, म्यूज़िकल नोट्स को सुन के वेकअप हो जाए, मूवमेंट में आ जाए और ये शानदार स्वीट सॉन्ग्स स्ट्राइक करें पोर्शिया के कानों को। पोर्शिया उन म्यूज़िकल नोट्स को सुनते हुए घर आए, एंजॉय करते हुए घर आए। इतना शानदार म्यूज़िक होना चाहिए। म्यूजिशियंस म्यूज़िक बजाने लगते हैं जैसे का आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हेयर स्वीट म्यूज़िक। भाई मैं तो जो है जब भी स्वीट म्यूज़िक को सुनती हूँ, म्यूज़िक ज़रूर से वो स्वीट है, लेकिन एक मुझे किसी भी तरह की खुशी म्यूज़िक को सुनकर नहीं होती है। लोरेंजो, द रीज़न इज़ योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव। भाई कारण ये है कि आपकी जो स्पिरिट्स हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, वो एक्चुअली अटेंटिव हैं, रिसेप्टिव हैं, लिवली हैं। और म्यूज़िक आपके जैसे अटेंटिव लिवली पर्सनैलिटी के पीपल के लिए नहीं है, वो तो डिजेक्टेड डिसअपॉइंटेड लोगों के लिए है। फॉर डू बट नॉट अ वाइल्ड एंड वांटन हर्ड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर लाइफ द हर्ड ऑफ mischievous animals, wild animals, ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में, या फिर यंग घोड़े जो अनहैंडल्ड हैं, जो अनट्रेन्ड हैं, वो घोड़े यंग हॉर्सेस ज़रूर आपने देखे होंगे। एंड फैचिंग मैड बाउंड्स, जंपिंग अबाउट मैडली, जो कि उछल कूद करते हैं पागलपन की हद तक, मैडनेस दिखाते हैं, बेलोइंग करते हैं, नाइंग करते हैं, आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, विच इज़ द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड। और ऐसा इसलिए होता है जैसी का क्योंकि उनकी जो वेन्स में ब्लड है वो यंग एज का ब्लड है, हॉट ब्लड है, एनर्जेटिक जो उनको फील करवाता है वो ब्लड है। इफ़ दे बट हियर पर चांस, और अगर बाई चांस वो म्यूज़िक की आवाज़ को सुने, वो जंगली घोड़े, तो ऑब्वियसली वो भी उस म्यूज़िक से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस ट्रम्पेट की साउंड उनके कानों में पड़े या फिर किसी भी तरह की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ उनके कानों में पड़े, एनी एयर ऑफ म्यूज़िक, एनी सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, तो यू शुड कम टू नो, यू विल कम टू नो कि दे स्टैंड ऑल टुगेदर, एक साथ शांत खड़े हो जाते हैं वो हॉर्सेस, म्यूचुअली स्टैंड हो जाते हैं एक साथ। एंड देयर सैविज आईज टर्न टू मॉडेस्ट गेज, और उनकी आँखों का जो वाइड लुक है, जंगली लुक, एग्रेसिव लुक, वो लुक एक सिंपल लुक में चेंज हो जाता है। नॉर्मली अब वो घोड़े देखने लगते हैं, अपनी उस मैडनेस को भूल जाते हैं, और ऐसा सिर्फ म्यूज़िक की वजह से होता है। इसीलिए पोइट ने ये फेन किया है, फेन मीन्स इमेजिन, कल्पना करना। इसीलिए पोइट ने, रोमन पोइट ओविड ने ये इमेजिन किया है कि ऑर्फियस, जिनको कि फादर ऑफ म्यूज़िक भी माना जाता है, क्योंकि ऑर्फियस जो कि उनकी बुक का एक कैरेक्टर है, उसको उन्होंने इतना ज़्यादा तारीफ़ की है उनके म्यूज़िक की कि ऐसा माना जाता था कि जब भी वो म्यूज़िक बजाते थे तो सारे के सारे जो नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ट्रीज, स्टोन्स, फ्लड्स, पानी अपनी दिशा भूल जाता था, पेड़ पत्थर नाचने लगते थे। इतना शानदार इफ़ेक्ट दिखाया गया। ओविड ने ऑर्फियस के बारे में लिखा है, ऐसा सिर्फ म्यूज़िक की इन्फ्लुएंस की वजह से होता था। चाहे कितना भी ज़्यादा स्टकमिश पर्सन क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा स्टकमिश मीन्स however a person is stubborn, जिद्दी, adamant, hard hearted,
गुस्से से भरा हुआ, एंग्री पर्सन कितना भी ज़्यादा हो, बट म्यूज़िक जो है उसे कुछ समय के लिए कंट्रोल में ले लेता है, शांत कर देता है. एंड द पर्सन हु इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, जिसे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड ही डज नॉट मूव एनी हाउ बाई एनी सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, एनी साउंड ऑफ म्यूज़िक इफ़ ही हेयर्स, तो ऐसा पर्सन जिस पे म्यूज़िक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना तो खुद म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, ना किसी भी तरह के बजते हुए म्यूज़िकल नोट्स से वो इन्फ्लुएंस होता है, तो सच अ पर्सन डिज़र्व्स टू बी कॉल्ड ट्रेचरस, डिसीटफुल, धोखेबाज, स्ट्रैटेजेम्स, प्लॉटर, षड्यंत्रकारी, स्पॉइल्स, डिस्ट्रक्टर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला पर्सन होता है वो इंसान जिसको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. द इमोशंस ऑफ हिज स्पिरिट्स आर डल एज नाइट, और उसकी जो मोशंस हैं, उसकी जो थॉट्स, उसकी जो फीलिंग्स, वो बिल्कुल काले अंधेरे की तरह बुरी हैं, डार्क हैं, गलत हैं. आइडेंटिफाई हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी एवेल्युएट हो जाती है. एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरेबस, और उसकी जो नेचर है, डिस्पोजिशन है, वो बिल्कुल एरेबस की तरह डार्क होता है. एरेबस एक्चुअली वॉज द सन ऑफ क्लासिकल सन गॉड. क्लासिकल माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग सन गॉड का लड़का एरेबस, जिसको कि डार्कनेस भी बोला जाता है. एंड ओनली बिकॉज ऑफ Erebus' presence in hell, there is darkness in hell. तो उसके खड़े होने की वजह से ही सिर्फ हेल में डार्कनेस रहता है, और ऐसे पर्सन उसी डार्कनेस को डिज़र्व करते हैं, उनके नेचर उसी को डिज़र्व करता है, और ऐसे पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए. खैर, तुम म्यूज़िक सुनो. तभी पोर्शिया और नरीसा स्टेज पे आते हैं. पोर्शिया, दैट नाइट वी सी इज़ बर्निंग इन माई हॉल. भाई ऐसा है, जो रोशनी हमें दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हॉल चैम्बर से आ रही है, मेरे कंपाउंड से आ रही है रोशनी. कितनी दूर तक बताओ कैंडल जो है अपनी लाइट को थ्रो कर सकता है, अपनी बीम्स को, अपनी रेज़ को थ्रो कर सकती है. बताओ कितना सरप्राइजिंग है ये कि एक कैंडल की रोशनी को इतना सारा बीच का अंधेरा मिलके नहीं रोक पा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारा जो बुरे डीड्स हैं, उनका डार्कनेस है इस संसार में, इतने सारे बुरे डीड्स का डार्कनेस मिलके भी एक अच्छे डीड की शाइन को रोक नहीं सकता. नरेसा, अच्छा एक बात बताओ पोर्शिया, जब चंद्रमा चमक रहा था, अभी तो मून जो है क्लाउड्स में हाइड हो गया है, तब तो हम कैंडल को नहीं देख पा रहे थे, ऐसा क्यों? तो पोर्शिया कहती है, सो डज द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस. वही बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा होता है, जिस तरीके से ज़्यादा शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की शाइन में लेस शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की शाइन जो है हाइड हो जाती है. अब क्योंकि मून ज़्यादा शाइनिंग था तो चमक रहा था, कैंडल कम शाइनिंग थी, उसकी शाइन हाइड थी. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक सब्स्टिट्यूट, एक राजा का डेप्यूटी, राजा की एब्सेंस में जब किंग मौजूद नहीं होता तो बिल्कुल उसी तरीके से शाइन करता है, उसी तरीके से रेप्यूटेड होता है, उसी तरीके से ग्लोरी हासिल करता है जितनी ग्लोरी की किंग की होती है, क्योंकि वो किंग की सीट पे ही बैठा हुआ है. और ऐसा तब तक होता है जब तक कि किंग प्रेजेंट नहीं है. लेकिन व्हेन द किंग कम्स बैक, तो उसकी खुद की ग्लोरी, खुद की स्टेट एम्प्टी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, क्योंकि वो सारी ग्लोरी किंग को चली जाती है, बिकॉज किंग कम्स बैक. बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल है इनलैंड ब्रुक का, एक ऐसी नदी जो विद इन दी कंट्री बहती है, कंट्री के अंदर अंदर बहती है, स्मॉल रिवर, और उसका पानी जाकर के समुद्र में मिल जाता है. वो नदी तभी तक ग्लोरियस होती है जब तक कि उसे अकेला देखा जाता है, लेकिन जब उसका पानी ओशियन में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, तो इतने बड़े समुद्र के सामने उस छोटी सी नदी की कोई वैल्यू नहीं है.
खैर तुम म्यूज़िक सुनो। नरेसा, इट इज़ योर म्यूज़िक। मुझे तो लगता है मैडम ये आपके घर की तरफ से आवाज़ आ रही है इस म्यूज़िक की। पोर्शिया, नथिंग इज़ गुड, आई सी विदाउट रिस्पेक्ट। देखो नरेसा, म्यूज़िक ये इतना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बात नहीं है कि ये मेरा म्यूज़िक है, मेरे म्यूजिशियंस इसको बजा रहे हैं, बल्कि बात दरअसल ये है कि ये म्यूज़िक जो है अगर एप्रोप्रिएट टाइम पे बजाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। रात के साइलेंस में ये म्यूज़िक ज़्यादा स्वीट लग रहा है डे की बजाय, क्योंकि डे में और भी नॉइजेज़ होती हैं, उनके साथ मिक्स होकर के जब म्यूज़िक हमारे कानों तक आता है तो उस म्यूज़िक को हम इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। म्यूज़िक ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, और जब तक वो अफेक्टेड ना हो अपने सरकमस्टांसेस से, मतलब विदाउट रिस्पेक्ट, जब तक वो अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से ना की जाए, एक सही टाइमिंग के हिसाब से ना की जाए, तब तक वो चीज़ अपने आप में अच्छी होती नहीं है। नरेसा, साइलेंस बेस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट। मैडम रात के साइलेंस ने म्यूज़िक को वर्चुअस बना दिया है, उसको क्वालिटीफुल बना दिया है। बेस्टोज मतलब गिव्स, साइलेंस हैज़ गिवन दी मैजिकल क्वालिटी टू दी म्यूजिक। पोर्शिया, द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज लार्क। देखो नरेसा, अगर मान लो एक कोआ, एक क्रो सिंगिंग करे तो उसकी सिंगिंग उतनी ही स्वीट कंसिडर होती है जितनी कि लार्क की, तब जबकि हम दोनों में से किसी की भी आवाज़ को अटेंड नहीं करते, लिसन नहीं करते, सुनते नहीं हैं, और जब हमने सुना ही नहीं तो दोनों ही बेटर म्यूजिशियंस हैं। एंड आई थिंक द नाइटिंगेल इफ शी शुड सिंग बाय डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अजय कुमार सोलंकी एंड आज मैं आगे जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उससे आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि अर्लियर आई हैव टॉट यू कि लोरेंजो and Jessica were discussing the different couples in the beginning of the scene. Later on, Stefano comes and Lorenzo gives him task to arrange the musicians so that he can give warm welcome to Portia. And when the musicians were playing their music, Portia and Narisa, who were on their way, were listening to it. Thereafter, I have taught you the comments of Portia and Narisa over the music and when it can be best heard. Now, just before the entry of Bassanio, Antonio, Grishanio and the followers, Portia and Narisa come to their house where they were welcomed by Lorenzo, and Lorenzo gives them information that Bassanio and Grishanio, husband of Portia and Narisa respectively, were on the way. They were about to come as they had received their message of coming back. Then Portia gives instructions to her servants Lorenzo and Jessica to look normal before their husbands, because they do not want that their husbands should suspect them anyhow. Now as Bassanio come on the stage, then right after coming, seeing Portia, he gives the very elaborate compliment to Portia because she was extremely beautiful lady. Antipodes are the two opposite poles on the earth. If on one pole there is darkness, then on another one there is darkness. As यहाँ पे नाइट है, रात का समय है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डार्कनेस है, और दूसरे एंटीपोड्स पे जो कंट्रीज़ हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर लाइट है। लेकिन बेसेनियो कहता है कि पोर्शिया तुम इतनी खूबसूरत हो कि आई शुड कंसीडर दिस प्लेस डिस्पाइट बीइंग इन डार्कनेस अ डे. You have such a beautiful face.
If you are coming here in absence of the sun, where there is darkness, then I should consider here the day. Portia in return says, let me give light. If I am day, if I am sun, then simply I will do my job, that is to give light. But light has another meaning, that is to be faithless. And I don't want, Portia does not want to be faithless for Bassanio, because she knows कि अगर एक वाइफ फेथलेस है अपने हस्बैंड के लिए तो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड दुखी रहेगा, सैड हार्टेड रहेगा. एंड पोर्शिया डज नॉट वांट दैट हर बेसेनियो शुड बी सैड एनी हाउ बिकॉज ऑफ हर. बट शी थिंक्स दीज आर द इश्यूज टू बी डिसाइडेड बाय गॉड, हु इज फेथलेस एंड हु इज फेथफुल. हर जॉब इज नाउ टू वेलकम हर हस्बैंड. इसीलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि यू आर वेलकम होम माई हस्बैंड, माई डियर हस्बैंड Bassanio. आई थैंक यू मैडम, गिव वेलकम टू माई फ्रेंड, दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो. मैडम एक्चुअली जो वेलकम आपने मुझे किया है वही वेलकम आप मेरे फ्रेंड का भी करो. ये मिस्टर एंटोनियो हैं और मैं इनका बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली एंडलेसली बाउंड हूँ, अंडर हायर ऑब्लिगेशंस हूँ. पोर्शिया इंस्ट्रक्ट बेसेनियो. पोर्शिया बेसेनियो से कहती है कि बेसेनियो यू शुड बी अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ एंटोनियो इन ऑल कंसर्न्स. जो भी तरीका है एहसान मानने का, ऑब्लिगेशन फील करने का, उस हर तरीके से आपको एहसानमंद फील करना चाहिए एंटोनियो, क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी तक को बाउंड कर दिया था, दाव पे लगा दिया था आपके लिए. एंटोनियो कहता है कि आपको ज़्यादा ऑब्लिगेशन में फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऑब्लिगेशन आपने मेरे ऊपर भी किया है, आपने मेरे ऊपर भी एहसान किया है, क्योंकि आपने मुझे प्यार दिया, मेरा वेलकम किया, जिससे कि आप रिलीव हो गए इतना ज़्यादा ऑब्लिगेशन फील करने से. पोर्शिया सर यू आर वेरी वेलकम टू आवर हाउस. सर आपका हमारे घर पे आने पे बहुत स्वागत है. इट मस्ट हैपन इन अदर वेज. सिर्फ खाली वर्ड्स के थ्रू बोलकर ही मैं आपका वेलकम नहीं कर रही हूँ, बल्कि जल्दी ही आपको पता चलेगा कि आपका दूसरे तरीक़ों से भी वेलकम है. Therefore, I scant this breeding courtesy. इसीलिए मैं जो है जो पोलाइट वर्ड्स बोल करके आपका वेलकम कर रही हूँ, उन पोलाइट वर्ड्स को बोलना बंद कर दें, क्योंकि मैं जब बोलना बंद करूँगी तभी आपके वेलकम की कुछ प्रिपरेशंस कर पाऊँगी. ग्रिशेनियो जो कि आते ही आते नरीसा से क्वेरलसम कंडीशंस में इंडल्ज्ड है, क्योंकि नरीसा ने जो रिंग ग्रिशेनियो को दी थी उसके लिए नरीसा को लगता है कि ग्रिशेनियो ने वो रिंग किसी लेडी को दे दी. तो ग्रिशेनियो अपनी सफाई में कहता है कि भाई वो देखो चंद्रमा, देयर इज द मून यॉन्डर देयर, और मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, यू आर नॉट गेटिंग मी. वेल इन फेथ आई गेव इट टू द जजेस क्लर्क. सच तो ये है कि मैंने वो रिंग लॉयर के क्लर्क को दी है. वुड ही वर डेड, अब वो चाहे अलाइव रहे या डेड, मुझे उसके ज़िंदा या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हैड मीन्स रिसीव्ड. जिसने भी रिंग को रिसीव किया, यानी मैंने उसको रिंग दी, अगर मुझे उससे मतलब होता तो मैं क्यों उसके ज़िंदा रहने के लिए कहता या मरने के बारे में क्यों कहता. लेकिन मुझे उसके मरने और जीने से कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माय डियर लव बिलव्ड, यू आर टेकिंग इट टू योर हार्ट. आप इसको दिल से लगा रही हो बात को, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी बात को अपने दिल से लगाएं. पोर्शिया अक्वेरल. पोर्शिया चौंक जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और वो कहती है लिसन, ओह लिसन. आते ही आते इन्होंने तो झगड़ा शुरू कर दिया. पास आ जाती है और पूछती है भाई मामला क्या है, झगड़ क्यों रहे हो.
Grishenio. About a hoop of gold. ये एक्चुअली एक जो हुप ऑफ गोल्ड है, हुप मीन्स रिंग, उसके लिए झगड़ रही है पाल्ट्री रिंग, और वो भी रिंग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की मामूली सी अंगूठी, दैट शी डिड गिव मी, और वो रिंग इन्होंने मुझे दी थी, हुज पोजी फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोइट्री। और इनको लगता है कि इनकी रिंग स्पेशल रिंग है और उस पर शायद इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि लव मी एंड लीव मी नॉट, कि मुझे हमेशा प्यार करना और मुझे कभी छोड़ना मत, उंगली से उतारना मत। बिल्कुल उस नाइफ मेकर की तरह, जो नाइफ मेकर अपने नाइफ्स के ऊपर अपने चाकू का ब्रांड लिखवा देता है। नरीसा, व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू। नरीसा नाराज़ हो जाती है। Narisa gets angry and she says that why he was talking about the ring or its valuation, क्योंकि ना तो रिंग की कोई प्रॉब्लम है ना उसकी वैल्यूएशन की। You swore to me when I did you give it to you। दरअसल आपने मुझसे कसम खाई थी जब मैंने आपको वो रिंग दी थी कि आप इसको अपने मरने के समय तक, टाइम तक वियर करके रखोगे, और साथ में आपके मरने के बाद आपकी कब्र में आपकी डेड बॉडी के साथ साथ ये अंगूठी भी जाएगी। नॉट फॉर मी, मेरी खातिर ना सही, कम से कम अपनी स्ट्रॉन्ग जो ओथ्स हैं, वेहेमेंट स्ट्रॉन्ग कसमें, उनके बारे में सोच लेते। यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव, और उनके बारे में सोचकर आपको वेल कंसर्न्ड होना चाहिए था, वरीड होना चाहिए था रिंग के प्रति, उसको संभाल के रखना चाहिए था। और सरप्राइजिंगली वो कहती है कि आपने बिल्कुल उसके अपोजिट काम किया, आपने उसको लॉयर के क्लर्क को दे दिया। नहीं, भगवान मेरा विटनेस है, मैं भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ कि क्लर्क जो है, जो भी है, वो लेडी है, और उसकी चिन पे कभी भी बाल, उसके फेस पे कभी भी बाल चिन पे नहीं आएंगे, दाढ़ी नहीं आएगी। इट मीन्स शी इज़ अ लेडी। ग्रिशेनियो, क्यों नहीं आएगी भाई, अगर वो मैन है, इफ़ ही इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ एज अ मैन, तो ही विल हैव द बियर्ड। नरीसा, अगर बाई चांस वो लेडी हो तो, और वो मैन के गेटअप में आपके सामने आई हो, इफ़ ही इज़ अ मैन इन रियल सेंस, तो नहीं आएगी ना उसकी दाढ़ी। ग्रिशेनियो, मैं अपने इस हाथ की कसम खा के कहता हूँ, ग्रिशेनियो हाथ की तरफ इशारा करता है। आई गेव इट टू द यूथ, मैंने उस यंग मैन को ये रिंग दी थी। वो एक लड़के जैसा लग रहा था, लड़की तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, और वो अंडर साइज था, थोड़ा सा स्ट्रेचर उसकी कम थी, और मुझे लगता है आप उसकी हाइट आपकी बराबरी होगी, आपसे ज़्यादा नहीं था, और टॉकेटिव बहुत था, फ्लर्टिंग था, बातचीत बहुत करता था। दैट मतलब हु, बैग्ड मतलब डिमांडेड, और उसने वो डिमांड कर ली रिंग मेरी मुझसे फीस के तौर पर। और भाई मैं इतना हार्ड हार्टेड तो हूँ नहीं कि मैं उसको मना कर देता, डिनाई कर देता, रिफ्यूज़ कर देता। इसीलिए मैंने मर्सी दिखाते हुए, सिंपैथी दिखाते हुए वो रिंग उसको दे दी। पोर्शिया, यू वर टू ब्लेम, फिर तो आपके ऊपर आरोप लगना चाहिए। अब मैं आपको प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में डील करूँगी कि आपने अपनी वाइफ का बताओ सबसे पहला गिफ्ट, जो कि सबसे ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए था आपको, आपने उसको इतना ईजीली अपने आप से अलग कर दिया। ये रिंग एक ऐसी चीज़ थी जो आपकी उंगली पे फिक्स थी, कुछ कसमों के द्वारा स्टक थी, पहनाई गई थी आपको कुछ प्रॉमिसेस के द्वारा, और आपके फ्लैश पर वो रुकी भी हुई थी, फास्टन थी, कसी हुई थी। उन्हीं प्रॉमिसेस की वजह से मैंने भी अपने बिलव्ड बेसेनियो को एक रिंग दी है, एंड मेड हिम स्वेयर, और मैंने उससे कसम ली है कि वो कभी भी उसको अपने आप से अलग नहीं करेगा। एंड हियर ही स्टैंड्स, और वो यहाँ पे देखिए खड़ा हुआ है, पूछ लीजिए उससे। आई डेयर स्टोन फॉर हिम, मैं बेसेनियो की तरफ से बोल्डली इस बात को कसम खा के कह सकती हूँ कि ही वुड नॉट लीव इट, कि वो उस अंगूठी को कभी भी अपनी उंगली से नहीं उतारेगा, अलग ही नहीं करेगा, लीव ही नहीं करेगा। लीव तो छोड़ो, वो प्लक ही नहीं करेगा, ड्रॉ नहीं करेगा, खींचेगा ही नहीं अपनी उंगली से, भले ही चाहे उसको दुनिया का सारा खजाना, सारा पैसा ऑफर किया जाए तो भी नहीं। नाउ इन फेथ ग्रिशेनियो, यकीनन ग्रिशेनियो तुमने अपनी वाइफ को एक दुख का कारण दे दिया है, ये अनकाइंड एक्शन करके,
ये गलत एक्शन करके अंगूठी देने का आपने दुखी होने का कारण अपनी वाइफ को दे दिया है। भाई मैं नरीसा की जगह होती तो पागल ही हो जाती गुस्से से। बेसैनियो साइड आ जाता है, घबरा जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और सोचता है, ऑडियंस से कहता है कि भाई अब ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अपने लेफ़्ट वाले हैंड को ही कट ऑफ कर देता हूँ, और कसम खा के कह देता हूँ कि भाई मैंने बहुत कोशिश की डिफेंड करने की रिंग को, लेकिन मैंने अपना लेफ़्ट वाला हैंड ही लूज़ कर दिया डिफेंड करने में। ग्रिशेनियो माय लॉर्ड बेसेनियो गेव हिज रिंग अवे। उधर ग्रिशेनियो पोर्शिया को सब कुछ बता देता है तो भाई मेरे लॉर्ड, मेरे फ्रेंड बेसेनियो ने सबसे पहले रिंग दी थी अनटू मतलब टू लॉयर के क्लर्क को, क्योंकि उसने मांगी थी, एंड इट डिजर्व इट टू, और इसके अलावा वो डिज़र्व भी करता था, वो लायक भी था उस रिंग के। उसके बाद मैंने उस क्लर्क को वो रिंग दी क्योंकि उसने भी कोर्टली प्रोसीडिंग्स को लिखने में कुछ हार्डवर्क किया, क्योंकि उसने डिमांड कर लिया मेरी अंगूठी को। न तो मालिक और न ही उसका मास्टर, न तो मालिक, न तो वो मैन और न ही उसका मास्टर। क्लर्क और लॉयर दोनों में से कोई भी और मतलब एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं था सिवाय उन रिंग्स के। पोर्शिया चौंक जाती है, सरप्राइज रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये प्यार की निशानी टोकन आखिर कैसे दे सकता है बेसेनियो। वो कहती है कौन सी रिंग दे दी माय लॉर्ड, माय डियर हस्बैंड, मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो मुझसे रिंग ली थी प्यार के टोकन के तौर पर, वो रिंग आपने नहीं दी होगी। ऑफ मतलब फ्रॉम। बेसेनियो इफ़ आई वुड एड अ लाई इनटू ए फॉल्ट, मेरे पास मेरा फॉल्ट छुपाने के लिए कोई झूठ नहीं है पोर्शिया, और अगर होता भी तो भी मैं उसे डिनाई कर देता यूज़ करने से। झूठ नहीं बोलता, आपको सच सच बता देता। अगर आपको मेरी फिंगर पे रिंग नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आई हैव गिवन इट। पोर्शिया इज सो वाइड योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रूथ, भाई आपका हार्ट तो बिल्कुल खाली है सिंसियरिटी से, फेथफुलनेस से, एकदम वॉइड है, वैकेंट है। हेवन की कसम खा के कहती हूँ अब मैं आपके साथ एज ए वाइफ नहीं रहूँगी, पहले आप मुझे मेरी रिंग ला के दीजिए। नरीसा नॉर आई बी और स्टिल आई अगेन सी माई, और मैं भी वही करूँगी जो पोर्शिया करेगी, मैं भी आपके साथ वाइफ के तौर पे तब तक नहीं रहूँगी जब तक आप मेरी रिंग ला के मुझे नहीं देंगे। बेसेनियो स्वीट पोर्शिया इफ़ यू डिड नो टू होम आई गेव द रिंग, अगर आप ये जानती कि मैंने वो रिंग किसको दी, उस पर्सन को अगर आप जानती तो वो पर्सन इतना महान है कि उसके बारे में सुन के आपके गुस्से की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, अबेट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डिस्प्लेजर नहीं करती हैं आप, मुझसे नाराज़ नहीं होती हैं आप। या फिर आप उस पर्सन को जान जाती जिसकी खातिर वो रिंग दी गई है, वो भी इतना महान है कि वो भी आपके गुस्से की डिस्प्लेजर की इंटेंसिटी को अबेट कर देता, कम कर देता। या फिर आप कंसीव करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं उन सर्कमस्टांसेस को, उन परिस्थितियों को। आई गेव द रिंग, जिन परिस्थितियों में मैंने वो रिंग दी, उन्हें कंसीव अगर आप अंडरस्टैंड करती हैं तो भी आपका गुस्सा इतना नहीं होता मेरे ऊपर। और या फिर आप इस बात को जानती कि मैं कितना ज़्यादा अनविलिंग था, मैंने बहुत कोशिश की रिंग ना देने की, लेकिन उन दोनों में से कोई भी कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं था सिवाय रिंग के, तो मैंने वो रिंग लॉयर को दे दी। पोर्शिया इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग, बेसेनियो रिंग मैजिकल थी, वर्चुअस थी, उस पर आपकी सारी केयर, फेथफुलनेस सब टिका हुआ था, लेकिन आपने उसकी वर्चुअसनेस को नहीं जाना। जानते तो आप उसको कभी भी अपने आप से पार्ट सेपरेट नहीं करते। और हाफ और वर्दीनेस दैट गिव द रिंग, या फिर उस पर्सन ने जिसने आपको रिंग दी जो कि मैं हूँ, अगर आप उसकी आधी क्वालिटीज़ को भी कंसीडर करते, हाफ क्वालिटीज़ को भी, क्योंकि पोर्शिया ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल, रिचेस्ट लेडी, रॉयल लेडी, और आपने ये नहीं सोचा कि किसी सिंपल पर्सन ने वो रिंग आपको नहीं दी है, एक रॉयल पर्सन ने वो रिंग आपको दी है, तो भी आप वो रिंग अपने आप से सेपरेट नहीं करते। कम से कम अपने ओनर के बारे में तो सोच लेते कि आपका ओनर तभी सेफ़ रहता मेरी नज़रों में जब आप रिंग को सेफ रखते, अपने कमिटमेंट को पूरा करते। वॉट मैन इज़ देयर सो मच अनरीजनेबल, मतलब देर इज़ नो मैन हु हैज़ नॉट द लॉजिक्स। हर पर्सन के अंदर लॉजिक्स होते हैं,
हर पर्सन के अंदर मॉडेस्टी होती है, मैनर्स होते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर मॉडेस्टी ना हो, जिसके अंदर लॉजिक्स ना हो। तो फिर हर पर्सन के अंदर मॉडेस्टी है, गुड मैनर्स हैं, और वो पर्सन इफ़ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट, अगर आपने अपनी खुशी से विलिंगली डिफेंड करने की कोशिश की होती, और वो भी ज़ील के साथ, जोश के साथ, किसी तरह का जोश दिखाया होता, विरोध दिखाया होता कि भाई मैं ये रिंग आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी वाइफ की रिंग है, निशानी है, मेरे लिए सेरेमनी है, पवित्र है, तो कोई भी आपसे अर्ज नहीं करता, डिमांड नहीं करता कि वो आपकी गिफ्टेड रिंग को आपसे ले, क्योंकि हर इंसान के अंदर लॉजिक्स हैं और हर इंसान के अंदर मैनर्स हैं। नरीसा जैसा करेगी वैसा ही मैं भी करूँगी। नरीसा टीचेज मी व्हाट टू बिलीव। अब नरीसा का मानना है कि उसके हस्बैंड ने रिंग किसी लेडी को दी है, तो मैं भी इसी बात के लिए अपनी लाइफ तक को स्टेक पे रख सकती हूँ, दाव पे लगा सकती हूँ, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो रिंग किसी लेडी ने ही रिसीव की है। बेस्ट एंड नो बाय माई ओनर, मैडम मैं अपने ओनर की, अपने सोल की कसम खा के कहता हूँ कि किसी भी लेडी ने इसको रिसीव नहीं किया है, बल्कि एक सिविल डॉक्टर ने, जो कि सिविल कोर्ट में सिविल केसेस को हैंडल करता है, उसने इस रिंग को रिसीव किया है। विच डिड रिफ्यूज 3000 डकेट्स ऑफ मी, ऑफ मीन्स फ्रॉम, उसने मुझसे 3000 डकेट्स लेने से मना कर दिए और मेरी रिंग मांग ली। विच आई डिड डिनाई हिम, और जब मैंने उसको डिनाई किया, मना किया, सफ़र्ड हिम टू गो डिस्प्लीज्ड अवे, और मैंने उसको सफ़र्ड मतलब अलाउड, मैंने उसको जाने दिया डिस्प्लीज्ड मूड में, नाराज़ मूड में। इवन ही, यहाँ तक कि उसको जाने दिया, बताओ, जिसने मेरे इंटीमेट फ्रेंड, डियर फ्रेंड की लाइफ को सेव किया था। और इससे ज़्यादा क्या करता? व्हाट शुड आई से, माई डियर स्वीट लेडी, इससे ज़्यादा इंसल्ट नहीं की जा सकती। आई वॉज एनफोर्स्ड, जब वो चला गया तो फिर मैंने अपने आप को कंपेल्ड फील किया वो रिंग भिजवाने के लिए। मैंने वो रिंग भेज दी, मैंने अपने आप को अंदर से मजबूर फील किया, मुझे ओवरकम कर लिया, बिसेट कर लिया विद शेम एंड कर्जी, शेमफुल फीलिंग्स ने, कर्जियस फीलिंग्स ने, पोलाइट फीलिंग्स ने। माई ओनर वुड नॉट लेट इनग्रेटिट्यूड, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो ओनर है, सम्मान है, उसके ऊपर एहसान फरामोशी का, इनग्रेटिट्यूड का बिल्कुल भी स्टेन लगे, दाग लगे, धब्बा लगे, क्योंकि मेरी इमेज नीट एंड क्लीन है, और मैं नहीं चाहता था कि उस पर किसी भी तरीके का स्टेन इनग्रेटिट्यूड का लगे। माई डियर लेडी, आप मुझे माफ़ करें, फॉर बाई दिस ब्लेस्ड कैंडल्स ऑफ द नाइट, क्योंकि ये रात में जो स्टार्स हैं, डिवाइन स्टार्स, मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो, हैड यू बीन देयर मीन्स इफ़ यू वर देयर, अगर आप वहाँ होती तो आई थिंक यू वुड हैव बैग्ड द रिंग ऑफ मी, ऑफ मीन्स फ्रॉम, तो खुद आप वो रिंग मुझसे मांग लेते उस वर्दी, उस योग्य लॉयर को देने के लिए। पोर्शिया, बस इतना सुनो, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम टू नियर माई हाउस, मैं नहीं चाहती कि वो डॉक्टर कभी भी मेरे घर के आसपास भी आए। सिंस ही हैव गॉट द ज्वेल, क्योंकि उसने वो ज्वेल ले लिया, अंगूठी में एनग्रेव्ड, जिसको मैं प्यार करती थी, एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी, और इसके अलावा आपने भी तो कसम खाई थी कि आप उसको मेरी खातिर संभाल के रखेंगे उस ज्वेल को। अब जब आप चीज़ें देने में लिबरलिटी दिखा सकते हैं, तो फिर मैं भी लिबरलिटी दिखा सकती हूँ। अगर वो कभी आसपास आया मेरे घर के, तो आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव, तो मैं भी उसको जो भी कुछ मेरे पास है पोजेशंस, वो सब उसको देने से मना नहीं करूँगी। नरीसा टू क्रिश्चियनियो, नॉर आई हिज क्लर्क, मैं भी वही करूँगी जो पोर्शिया करेगी, इसीलिए टेक केयर ओनली वन थिंग, दैट इज़ टू लीव अस अंडर आवर ओन प्रोटेक्शन ऑफ वुमनलीहुड, हमें मैनलीहुड की प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, बीइंग अ लेडी वी आर नॉट वीक एट ऑल, एंड वी डू नॉट रिक्वायर you mainly protection anyhow. Antonio, I'm an happy subject of these squares. It means I'm the root cause of all these squares. Because of me you all are quarreling. Portia, so grieve not you. Grieve means students become upset. आपको upset होने की ज़रूरत नहीं है भाई, you are welcome notwithstanding. हालांकि notwithstanding means इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद,
भाई ऑल्दो वी हस्बैंड एंड वाइफ आर क्वेरलिंग, हम हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, आपका तो वेलकम है ना, आपका वेलकम है। बेसैनियो, पोर्शिया फॉर गिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, पोर्शिया मुझे माफ़ कर दो भाई, क्योंकि मैंने गलत काम किया, जानबूझ के किया, बट आई वॉज कंपेल्ड फॉर डूइंग सो एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स, और मैं इतने सारे फ्रेंड्स की मौजूदगी में, हियरिंग मतलब प्रेजेंस, कसम खाता हूँ, आई स्वेयर टू दी, मैं आपकी कसम खाता हूँ, इवन बाय दाइन ओन फेयर आइज, आपकी कसम ही नहीं बल्कि मैं आपकी खूबसूरत आँखों की कसम खा के कहता हूँ, वेयरइन आई सी माई सेल्फ, जिसमें मुझे मेरे प्रति अभी भी प्यार नज़र आ रहा है। पोर्शिया बात को दूसरे सेंस में लेती है। पोर्शिया कहती है मार्क यू वर्ड दैट, शी कट्स ऑफ बेसैनियोज स्टेटमेंट, और वो कहती है देखिए लिसन फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, इन बोथ माई आईज इट डबली सी हिमसेल्फ, ये कह रहा है कि मेरी आँखों में ये खुद को देख रहा है, तो मेरे पास दो आँखें हैं, इसका मतलब इसको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरी दो आँखों में, इसका मतलब ये डबल डीलर है, दो तरह की बात करने वाला आदमी है, झूठा आदमी है, एक आँख में एक, दो आँख में दो, स्वेयर बाय योर डबल सेल्फ, भाई तुम्हारी जो डबल सेल्फ है, तुम्हारी जो इक्विकेटर वाली पर्सनैलिटी है, डबल डीलर वाली पर्सनैलिटी है, क्या वो क्रेडिटेबल है, क्या वो यकीन करने लायक है। बेसैनियो ने बट हियर मी, पोर्शिया मुझे फंसाओ नहीं बातों में, मैं नहीं सुनना चाहता कुछ भी, बस मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि पार्डन दिस फॉल्ट, आप मेरी गलती को, फॉल्ट को माफ़ कर दें, एंड बाय माई सोल आई स्वेयर, और मैं अपनी सोल की कसम खा के कहता हूँ कि आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी, कि मैं कभी भी आपके साथ खाई हुई कसम को तोड़ूंगा नहीं। एंटोनियो, आई वंस डिड लैंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ, भाई मैंने अपने फ्रेंड की भलाई के लिए एक बार अपनी बॉडी को दाव पे लगा दिया था पोर्शिया, विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग एट क्वाइट मिसकेट, और अगर आपके हस्बैंड ने रिंग नहीं दी होती उस लॉयर को, तो निश्चित तौर पे मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ वो अपनी ज़िंदगी को लूज़ कर चुका होता, मैं होता ही नहीं सामने आपके। आई डेयर बी बाउंड अगेन, एक बार फिर से मैं अपने आप को बाउंड करने की बोल्डनेस दिखाना चाहता हूँ। माई सोल अपॉन द फोरफीट, और अगर बॉन्ड फेल हुआ तो मैं खुद अपनी लाइफ को स्टेक पे रखता हूँ। दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइजली, कि आपका हस्बैंड कभी भी नोइंगली कसम को तोड़ेगा नहीं। पोर्शिया, देन यू शैल बी श्योरिटी, ठीक है एंटोनियो तुम जो है गारंटर रहोगे। गिव हिम दिस, ये रिंग एक और लो और इसको दे दो। बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर, और उसको कह दो कि ये दूसरी वाली रिंग से ज़्यादा मच केयर के साथ इस रिंग को संभाल के रखें। एंटोनियो, भाई कम हियर लॉर्ड बेसेनियो माय डियर फ्रेंड, स्वेयर टू कीप दिस रिंग, कसम खाओ कि आप इस रिंग को संभाल के रखोगे। बेसेनियो, बाय हेवन, बेसेनियो सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है ये तो वही वाली रिंग है, इट इज़ द सेम आई गेव द डॉक्टर। पोर्शिया एडिट ऑफ फेम, भाई आपने डॉक्टर को दी, मैंने उससे ले ली, और अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नरीसा एंड पार्डन मी माई जेंटल क्रिश्चियनियो, और माई डियर क्रिश्चियनियो आप मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो जो अंडरसाइज्ड जो लड़का है, क्लर्क है डॉक्टर का, उसने मुझे ये रिंग आपकी वापस कर दी। पोर्शिया जब देखती है कि सभी सरप्राइज्ड हैं तो वो कहती है यू आर ऑल अमेज्ड, कि भाई आप सभी सरप्राइज नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये लेटर लो और इसको लेज़र टाइम में, फ्री टाइम में इसको पढ़ो। इट कम्स फ्रॉम पेडुआ फ्रॉम बेलेरियो, ये मेरे कज़िन डॉक्टर बेलेरियो का लेटर है, पेडुआ से मुझे रिसीव हुआ है। जब आप इस लेटर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट पोर्शिया वॉज द डॉक्टर, कि वहाँ पे जो पोर्शिया थी वही डॉक्टर थी। नरीसा उसके क्लर्क की फॉर्म में थी। लोरेंजो हियर शैल विटनेस, लोरेंजो इस बात का विटनेस है, गवाह है कि आई सेट फोर्थ एज सुन एज यू, कि जैसे ही आप चले गए थे, जैसे ही आपने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था तो हम भी चले गए थे। एंड इवन बट नाउ रिटर्न, और अभी भी यहाँ पे लौट के आए हैं। आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस, अभी तो मैंने अपने घर में एंट्री भी नहीं ली है, बाहर ही खड़ी हूँ। एंटोनियो यू आर वेलकम, एंटोनियो आपका वेलकम है। एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू, मैंने एक बेटर न्यूज़ आपके लिए संभाल के रखी है, स्टोर करके रखी है देन यू एक्सपेक्ट, और आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। अनसील दिस लेटर सोन, एक लेटर और देती है एंटोनियो को खोलने के लिए, अनसील करने के लिए। देयर यू शिल फाइंड,
और जब आप इस लेटर को पढ़ोगे एंटोनियो तो आपको पता चलेगा कि 3 ऑफ योर आर्गोसीज, कि आपके 3 मर्चेंट शिप्स आर रिचली कम टू हार्बर सडनली, वो बेनिफिट कमा के, प्रॉफिट कमा के हार्बर पे अचानक आ गए थे। यू शैल नॉट नो, और आपको ये नहीं जानना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस हैपन्ड हुए, चांस्ड हुए, जिसमें मुझे ये लेटर मिला। बस आपको गुड न्यूज़ से मतलब होना चाहिए। एंटोनियो आई एम डम, भाई मैं तो स्पीचलेस हो गया पूरी तरीके से। मिस एनियो, वर यू दी डॉक्टर, भाई क्या आप डॉक्टर थे वहाँ पे? मैं तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया। ग्रेशियनियो, वर यू दी क्लर्क, क्या आप क्लर्क थे वहाँ नरेसा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। एंटोनियो, माई डियर स्वीट लेडी, यू हैव गिवन दी मी लाइफ एंड लिविंग, आपने न सिर्फ मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट किया है बल्कि मुझे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज भी दिए। फॉर हियर आई रीड फॉर सर्टेन, क्योंकि अब मैं श्योर हो गया हूँ इस लेटर को पढ़ने के बाद कि मेरे जहाज़ सुरक्षित रोड पर, हार्बर पे आ गए हैं। पोर्शिया, हाउ नाउ लोरेंजो, हेलो लोरेंजो, मेरे क्लर्क के पास आपके लिए भी हैप्पीनेस देने वाली न्यूज़ है। नरेसा, यस, और अगर मैं क्लर्क हूँ तो मुझे आपसे पेमेंट लेना चाहिए इस न्यूज़ का, इस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन मैं आपसे पेमेंट नहीं लूँगी। मैं ये न्यूज़ आपको और जैसिका को दूँगी, और ये न्यूज़ ये है, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अमीर यहूदी है उसने एक स्पेशल डीड, ए लॉफुल डॉक्यूमेंट साइन किया है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी डेथ के बाद जो कुछ भी वो पजेस करता है वो सब लोरेंजो और जैसिका का होगा। लोरेंजो, माय डियर लेडीज़, आपने वही काम किया है बिल्कुल जैसे कि गॉड्स और गॉडेसेस ने किया था। भूखे इजराइलिटीज़ के लिए जो रेगिस्तान पार कर रहे थे और भूख से तड़प रहे थे रास्ता भूलने की वजह से, भगवान ने फूड पैकेट्स ऊपर से गिराए और उनको बचाया। ऐसे ही आपने हम नीडी पीपल की नीड्स को गुड न्यूज़ दे करके पूरा किया, और ये हमारे लिए माना यानी हेवनली फूड से कम नहीं है। पोर्शिया, लगता है सुबह हो गई लगभग, और अब हम अंदर चलते हैं क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर अंदर चलते हैं। एंड चार्जस, अंदर चल के आप हमसे चार्ज करना, रिक्वेस्ट करना कि हम आपको अपॉन ओथ्स इंटरग्रेटरीज, कसम खा खा करके आपकी हर बात का जवाब दें, ताकि आप हमारी बातों पे यकीन कर लो। और जब आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसी, तो फिर हम आपको फेथफुल तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। ग्रीशियनियो, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वेल, व्हाइल आई लिव, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं एक चीज़ के प्रति हमेशा डरा रहूँगा, हमेशा केयरफुल रहूँगा कि नरीसा की रिंग ना खो जाए, इसको मैं हमेशा संभाल के रखूँगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीट। आई डू होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अब आप सभी अपने वर्कबुक के क्वेश्चंस और उनके नोट्स को मैच कर लें। Thank you very much for listening to me. Have a good day. Bye.